let's start with analytical part of healthcare services, whereat we have understood along with one example. Healthcare service by clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics are exempt from entry number 74 from GST. आपको पता है. So what do you mean by healthcare service? ये definition मैंने आपको बताया था. Healthcare service means any service by way of diagnosis or treatment or care of for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized medical system, any system of medicine in India, and includes transportation of patient, but does not include hair transplant, cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct the anatomy or functions of a body affected due to congenital defects, development of abnormalities, injury or trauma. As it is apparent from the definition of healthcare services, only recognized medical system of India are exempt under this entry. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या कहाँ से उठाया उन्होंने, ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 से ये डेफिनेशन उठाया हुआ है कि हेल्थ केयर में क्या क्या आता है. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब यहाँ पे कवर होता है. क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है सर? क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं. क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट मींस हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, sanatorium or any other institution by whatever name called that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy in recognized system of medicine in India, or a place established as the independent entity or a part of establishment to carry out diagnosis or independent or investigative services of disease. Thus, diagnostic or investigative services of disease provided by pathological labs are not liable for GST. तो पैथोलॉजिकल लैब, पैथोलॉजी तो समझता है ना, जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो एग्जेम्प्ट हो गया. आप समझ रहे हो? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जहाँ पे होता है, पैथोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब क्या होता है? तो देखिए आप ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसको मैं देखता हूँ तो मुझे डॉक्टर गुलाटी की याद आती है फ्रॉम कपिल शर्मा शो. Dr. Gulati. Authorized medical practitioner means a medical practitioner registered with any council of recognized system of medicine established or recognized by law in India, includes medical professional having requisite qualification. Yeah, oh, what a lovely day. Yes, yes, yes. Let me introduce myself. I am Dr. Gulati. वेरी फेमस डॉक्टर. चलो ठीक है, मशहूर गुलाटी ना, मशहूर गुलाटी. सो रिकॉग्नाइज by law in India and includes medical professional having requisite qualification to practice in any recognized system of medicine in India as per any law for timing in force. ये सब डेफिनेशन आपके काम के नहीं है, मैं खाली रीड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वहां पे क्या लिखा हुआ है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन. पैरामेडिक्स देखो, पैरामेडिक्स देखो, पैरामेडिक्स को देख लो, अच्छे लोग हैं. यही तो लोग होते हैं जो खुशी बना के रखते हैं, हैप्पीनेस बना के रखते हैं हॉस्पिटल में. बाकी हॉस्पिटल तो डरावना होता है. ठीक है ना. पैरामेडिक्स आर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ, physiotherapists, technicians, lab assistants, etc. Services by them in a clinical establishment would be in the capacity of employee and not provided in independent capacity, and will thus be considered as services by a clinical establishment, and similar services in an independent capacity are also exempted. आप कभी कभी होम नर्स भी रखते हो. अगर आपकी दादी बीमार है और घर पे ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है तो आप नर्स, होम नर्स रखते हो, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करेगी, फिर भी वो एग्जेम्प्ट है. सर ये रूम रेंट जो रहता है वो होटल जैसा ही तो होता है. आप रूम रेंट पे करते हो, डिलक्स रूम, एसी रूम ना, ऐसा होता है ना. हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है. सुना है आपने कभी? आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चले जाओ या बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो ऐसा होता है ना, डिलक्स रूम चाहिए क्या, रूम विथ वन एक्स्ट्रा बेड फॉर अटेंडेंट चाहिए क्या, रूम विथ बाथरूम इनसाइड, बाथरूम अटैच, ऐसे अलग अलग फैसिलिटी, रूम एसी टीवी, ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज वाले रूम होते हैं. तो ये होटल जैसा नहीं हो गया? तो रूम रेंट के ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए था. क्या बोलते हो आप लोग? भाई आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जनरल वार्ड में रहोगे तभी भी ऑपरेशन होगा, डेडिकेटेड रूम में, डिलक्स रूम में रहोगे तभी भी हॉस्पिटल आपका ऑपरेशन होगा ना. तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है. जो रेंट रूम जो प्रोवाइडेड होता है पेशेंट को हॉस्पिटल में, वो भी हमने एग्जाम करके रखा हुआ है. तो भले डेडिकेटेड रूम भी लिया हो, फिर भी रूम रेंट जो हॉस्पिटल चार्ज करता है वो एग्जाम होना चाहिए. ठीक है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट और टेक्नीशियंस,
ये कैसे होता है, सीनियर डॉक्टर वगैरह यूजुअली ना उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनको बाहर से बुलाया जाता है ऑपरेशन वगैरह के लिए खास करके। हॉस्पिटल हायर्स सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट टेक्नीशियंस इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है। सच पर्सन डू नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट, तो पेशेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल के साथ होता है। हॉस्पिटल पे देम कंसल्टेंट चार्जेस एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, बाहर से आके वहां पे ट्रीटमेंट देके चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे हॉस्पिटल्स को पॉलीक्लिनिक बोलते हैं। पॉलीक्लिनिक, अगर आपने कभी हॉस्पिटल के नाम में पॉलीक्लिनिक देखा होगा, पॉलीक्लिनिक मतलब उनके खुद के हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के अलावा बाहर के डॉक्टर भी वहां पे आके काम करते हैं, पॉलीक्लिनिक बोलते हैं उनको, ठीक है ना। इट इज क्लैरिफाइड बाय द सीबीआईसी दैट services provided by such senior doctor consultant technicians whether employee or not are healthcare services which are exempt from GST। तो उन डॉक्टर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उन डॉक्टर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो डॉक्टर डायरेक्टली हॉस्पिटल डायरेक्टली पेशेंट को सर्विस नहीं दे रहे, पहले हॉस्पिटल को सर्विस दे रहे हैं। तो फिर भी वो क्लैरिफिकेशन आ गया कि उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके ऊपर आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन जैसा है वैसे पढ़ना पड़ेगा अपने को। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट, अब हॉस्पिटल क्या करता है, डॉक्टर को अगर फीस देनी है एक्स अमाउंट, तो हॉस्पिटल हमेशा एक्स प्लस चार्ज करता है, तुम समझ रहे हो। हेलो, डॉक्टर ने अगर बोला ये सर्जरी करने के लिए मैं 10 लाख रुपया लूंगा, तो आपको क्या लग रहा है, हॉस्पिटल 10 लाख रुपए ही लेगा पेशेंट से कि ज्यादा लेगा। वो जो प्रोफेशनल डॉक्टर आया है बाहर से, वो बोलता है 10 लाख चाहिए मुझको, वो तो हॉस्पिटल उसको पे करेगा, तो ज्यादा लेगा। तो उसका क्या करेंगे, वो यहाँ पे बात हो रही है। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट इन अबव केसेस, सपोज हॉस्पिटल charges the patient say 10,000 rupees and pay the consultant only 7,500, तो हॉस्पिटल का मार्जिन 2,500, ये 2,500 को लेके लॉ में मारा मारी है कि वो 7,500 के ऊपर तो टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि वो डॉक्टर ने चार्ज किया ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन बाकी का जो 2,500 है उसका क्या करेंगे। Keep the balance for providing ancillary services which includes nursing care, infrastructure facility, paramedic care, emergency services, checking of temperature, weight, blood pressure, etc. तो ये सारा हॉस्पिटल करता है, वो बोलता है कि वो जो 2,500 है, जो प्लस लिया हमने एक्स्ट्रा लिया, वो हमारा चार्जेस है। Going through the definition of healthcare services given above, it can be inferred that hospital also provide healthcare services. The entire amount charged by them from the patient, including retention money, ये 2,500 और retention money है, the fee payment made to the doctor etc. toward the healthcare services provided by hospital to the patient is and patient is exempt। तो बोलते हैं जो पेशेंट 10,000 ले रहा है, पेशेंट का तो पूरा का पूरा 10,000 हम एग्जाम करेंगे। अब इसके ऊपर जो सीएमए मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो बोलता है कि जो बीच में का 2,500 है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, हॉस्पिटल को भरना पड़ेगा, उसकी बातें वो क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन हाँ पेशेंट के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। पेशेंट जो 10,000 दे रहा है वो 10,000 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। ये डॉक्टर जो 7,500 लेके जा रहा है वो डॉक्टर के हाथ में एग्जाम्प्ट है। 2,500 के साथ क्या होगा उसकी बातें हम बाद में क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे तो अच्छा है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, मैकडोनल्ड वगैरह में खाना खाते हो, इसको दे रहा दिख रहा है, ये पेशेंट दिख रहा है, ये हरामी पेशेंट के मन में क्या क्या आ रहा है दिख रहा है आपको। इसको केक दिख रहा है, हाँ यहाँ पे इसको चिकन तंदूरी दिख रही है, यहाँ पे इसको बर्गर दिख रहा है। हॉस्पिटल में सब मिलता है क्या? बोलो जल्दी, हॉस्पिटल में ये सब मिलता है क्या? जल्दी बोलो, नहीं मिलता, ठीक है ना। हॉस्पिटल में मिलती है दाल खिचड़ी वगैरह, वो सब सिंपल सिंपल बातें, लेकिन ये वो सोच के ये खा रहा है। मुझे बताओ, जब ये सब खाने आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो जीएसटी लगता है क्या इसके ऊपर? किसी अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट में जाके ये सब खाओगे तो डू यू पे जीएसटी? जल्दी बोलो। हाँ जीएसटी लगता है। परसेंटेज भी आपको पता है? परसेंटेज भी बता दो मुझे, रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर परसेंटेज क्या है? 5% है, 2.5 जीएसटी, सीजीएसटी प्लस 2.5 एक जीएसटी, तो टोटल 5 लगता है, ये पता है अपने को। अब हॉस्पिटल, किसी किसी हॉस्पिटल का रूल क्या होता है, जैसे खास करके एक हमारे मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल है भक्ति वेदांता करके, भक्ति वेदांता का रूल क्या है कि आउटसाइड फूड आप पेशेंट को नहीं दे सकते, आप पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल का ही फूड देना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कुछ हॉस्पिटल में ऐसा रूल होता है, सुना आपने? पेशेंट को जो फूड जाएगा वो हॉस्पिटल का ही जाएगा, आउटसाइड फूड इज कंप्लीटली नॉट अलाउड। हाँ ऐसा होता है। तो आपको नहीं लग रहा होटल फूड भी दे रहा है, जबकि सॉरी होटल नहीं, हॉस्पिटल फूड भी दे रहा है, जबकि उसका काम तो खाली इंजेक्शन और गोली देना था। लेकिन क्या फूड इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान? जल्दी बोलो, क्या कंजम्पशन ऑफ फूड आल्सो प्ले वाइटल रोल? इंपॉर्टेंट है कि नहीं फूड कंजम्पशन? इसको ये सब खाने दोगे तो ये ठीक होगा क्या जल्दी? चाइनीज भेल वगैरह इसको देंगे तो चलेगा क्या? नहीं। अमल बोल रहा है यस, यही खाने, यही खिलाओ, यही खिला के, यही खा के वो ठीक हो जाएगा।
हाँ, तो इसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। कौन सा सप्लाई बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई जब इसको बोला जाएगा, कंपोजिट सप्लाई जब इसको बोला जाएगा तो सेक्शन 8A लग जाएगा। और सेक्शन 8A क्या बोलता है? बोलो तो बोलो, आपको भूख लगी थी इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, या हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे करके आपको खाना दिया जा रहा है? दोनों में का प्रीडोमिनेंट क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हेल्थ केयर या फूड? हॉस्पिटल में जो खाना दिया जा रहा है दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? फूड या हेल्थ केयर? हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ केयर प्रिंसिपल हो गया। अब हेल्थ केयर एग्जम्प्ट है तो फूड भी क्या होगा फिर? जल्दी बोलो। जब हेल्थ केयर एग्जम्प्ट है तो इसका जो एंसिलरी सप्लाई है, सेकेंडरी सप्लाई है जो उसके साथ दिया जा रहा है, वो ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल एग्जम्प्ट तो एंसिलरी भी एग्जम्प्ट, ऐसा 8A का रूल होता है। ठीक है ना, सेक्शन 8A की बात ऐसे करता है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द टेक्निकल by the clinical establishment will include food supplied to the patient, but such food may be prepared by the canteen run by the hospitals or may be outsourced by the hospital from the outer caterers. चलेगा, ठीक है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। When outsourced, there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as applicable and hospital will get no ITC. हॉस्पिटल को ITC नहीं मिलेगा। जब आपने बाहर से अपने खुद की कैंटीन में खाना बनाया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी होटल से मंगाया आपने तो उसके ऊपर तो GST लगेगा, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं फूड बेच रहा है। ठीक है ना, और उसका आपको हॉस्पिटल को कोई ITC नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल को ITC इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हॉस्पिटल टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे रहा है। फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है ना, जो क्या बोलते हो क्या डाइटिशियन जो होते हैं उनकी बात करें। कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट नहीं हुए हैं, एंड देयर अटेंडेंट एंड विजिटर्स आर टैक्सेबल। आप समझ रहे हो, वो कैंटीन में खाली जो इन पेशेंट होते हैं वही खाना नहीं खाते। कैंटीन में कौन कौन जाके, तुम अगर दोस्त को देखने गए हो किसी को, तो तुमको पता है तुम भी कैंटीन में जाके खाना खाते हो कि नहीं? अरे कोई अगर तुम्हारा फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो और तुमको भूख लगी तो उसी कैंटीन में खाना खाओगे ना आप लोग? खाना नहीं खाते आप लोग कैंटीन में? होता है कि नहीं कैंटीन? हाँ होता है ना वहां पे कैंटीन। अरे भाई कोकिला बहन वगैरह की कैंटीन में जाओ, तुमको पता चलेगा, मजा आ जाएगा। वो मैकडोनल्ड, पिज्जा हट वगैरह भी है वहां पे आजू बाजू में शायद, ठीक है ना। तो कैंटीन वहां पे होती है, तो उनको हमने टैक्सेबल रखा हुआ है, क्योंकि आप पेशेंट थोड़ी ना क्या, और पेशेंट वो भी तभी भी आपने एडमिट नहीं किया आपको, वो आप खाली क्या ओपीटी कुछ तो बोलते ना, ओपीटी वगैरह बोलते हैं, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट ऐसा कुछ होता है। वो ओपीटी वगैरह के पेशेंट को आप आओगे, विजिट करोगे, निकल जाओगे, आपके लिए टैक्सेबल है। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। आपने अगर किसी मेडिकल का नए मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया है, उसके चार्जेस आप ले रहे हो। कोई नया एक हेल्थ केयर इक्विपमेंट आया हुआ है, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट करना क्या हॉस्पिटल का जॉब है? जल्दी बोलो, क्या एडवर्टाइजमेंट करना हॉस्पिटल का जॉब है? क्या हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा वो? आपने एडवर्टाइज किया हुआ है, इज इट ए हेल्थ केयर सर्विस? नहीं, तो वो टैक्सेबल हो जानी चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप, वहां पे शॉप भाड़े पे देना, या ऑडिटोरियम भाड़े पे देना, या अपने डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है ना, ये सब के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो इस मॉडल में जो जो लिखा था खत्म हो गया। अभी आपके मॉडल में देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये हमने बात कर ली, ये बातें हमारी हो गई। एग्जाम क्या है, टैक्सेबल क्या है, ठीक है ना, ये भी हमारी बात हो गई। अब ये जरा एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके मॉडल ने लिखे वो भी बता देता हूं आपको। पैनिक हीलिंग ट्रीटमेंट इज टैक्सेबल। पैनिक हीलिंग समझते हो? जब आपके घर पे झगड़ा वगैरह हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है ना, और उससे बातें करके उसको रिलैक्स करती है, वो हिप्नोटाइज वगैरह करते हैं। पता है आपको, ऐसा सुना है आपने? आंखें बंद करो, अभी आप समंदर के किनारे हो, सुना है ऐसा कभी? हाँ, वो पैनिक हीलिंग वगैरह जो होता है वो टैक्सेबल है। वो फालतू लोग हैं, वो टैक्सेबल करते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर होता है। एक्यूप्रेशर मतलब समझते हो क्या होता है? एक्यूप्रेशर मतलब आपको हेडेक है तो यहाँ दबाओ, ठीक है ना, बैक एक है तो यहाँ दबाओ, दिमाग में प्रॉब्लम है तो यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है ना, एक्यूप्रेशर होता है वो। फिर आपको बोला जाता है कि आप नंगे पांव गार्डन में चलो या पत्थरों पे चलो, उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, उसको एक्यूप्रेशर
एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूपंक्चर मतलब क्या होता है, अपने चाइनीज मूवी वगैरह में देखा होगा, तो वो पिन मारते हैं ऐसे, टाटा टाटा टाटा, बॉडी को पंक्चर किया जाता है, देखा आपने ऐसे कभी, सुई मारते हैं अलग अलग जगह पे, हाँ ठीक है ना, तो एक्यूपंक्चर होता है, पंक्चर करना, ठीक है ना। ये सारे टैक्सेबल आइटम है, ठीक है ना। रेकी, रेकी का मैंने खुद एक सेशन लिया था, और मैं और 2 सेशन अगर लूंगा तो मैं भी खुद रेकी का डॉक्टर हो जाऊंगा। रेकी में एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है, अपने बॉडी में 7 एनर्जी चक्रास होते तो बहुत सारे 101 या 102 होते हैं, सदगुरु ने वगैरह बोला, उसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर है, और एक अलग ही लेवल का साइंस है। अपने बॉडी में चक्रास होते हैं, ठीक है ना, वो आपने शक्तिमान वगैरह में देखा होगा, तो लास्ट में से आता है तो उसके बॉडी पे अलग अलग चक्रा दिखाए जाते हैं, उन चक्रास को एक्टिवेट करना मतलब रेकी का ट्रीटमेंट करना। तो रेकी अगर आप करोगे तो भी ये टैक्सेबल है। लेवल 1 मेरा हो गया, लेवल 2 3 होने के बाद आपसे मैं फीस लेके आपको भी रेकी सिखा दूंगा मतलब क्या होगा, ट्रीटमेंट दे दूंगा। अगर आप पागल हो रहे हो तो आप मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। तो रेकी इज एन एंशिएंट ईस्टर्न हीलिंग मेथड दैट यूजेस एनर्जी टू बैलेंस द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। रेकी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हीलिंग सिस्टम इन यूज टुडे, ठीक है ना। अरे भाई मैं देखा तो टेंशन मत ले, लेवल 1 मेरा क्लियर हो गया भाई। हाँ। बात एक ही है कि आपको फीस के साथ साथ टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि रेकी ऑथोराइज में नहीं आता अभी, ठीक है ना। कलर थेरेपी, टैक्सेबल कलर थेरेपी क्या होती है, ये अलग अलग कलर दिखाते होंगे। कलर थेरेपी क्या होता है यार, देख लो, गूगल कर लो। प्राइवेट सेक्टर से अगर आप एम्बुलेंस लेकर आओगे तो एग्जाम्प्ट हो, तो मैंने बता दिया आपको। गवर्नमेंट सर्विस की बाद में बात करेंगे। रिहैब का अलग से एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, रिहैब सुना है? कुत्ता कुठे आता, कुठे आता चांगला आहे, येडा होईल। नहीं भाई, एनर्जी एक्टिवेट होता है ना, तो वो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाई आई लर्न इट, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है ना। आप जब मेडिटेशन करते हो तो जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो इट गिव्स यू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसा है। तो इट्स नॉट ट्रीटमेंट काइंड, इट काइंड ऑफ मेडिटेशन पार्ट, ठीक है ना। तो डीप मेडिटेशन आप बोल सकते हो, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रिहैब सेंटर के बारे में सुना है कि नहीं है? अगर आप ने कौन सा मूवी हो, संजय दत्त का संजू आया था ना, संजू, संजू देखा होगा, या तो वो सेक्रेड गेम में भी एक रिहैब सेंटर दिखाया हुआ है ना, सेक्रेड गेम या कोई एक गेम में दिखाया, कोई एक सीरीज में भी दिखाया रिहैब सेंटर, जहाँ पे जो ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं लोग, या अल्कोहलिक एडिक्ट्स लोग जो लोग होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। तो रिहैब सेंटर का अलग से अपना एक नोटिफिकेशन है, वहां पे हम पढ़ेंगे, लेकिन यस, ऑथोराइज रिहैब सेंटर्स इन इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, ओके, तो वो भी यहाँ पे है। फूड की बात की थी हमने, आउट पेशेंट की बात की हमने, यहाँ पे ऑथोराइज, डॉक्टर्स आर एग्जम्प्टेड, ठीक है चलेगा। बायोमेडिकल वेस्ट की हमने बात की है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अभी। 216 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड provides following services to Apollo Hospital, Chennai during the month of March 2020, जो भी है। कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। अपोलो हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, बोलो टैक्सेबल और एग्जेप्ट? बायोमेडिकल वेस्ट टैक्सेबल और एग्जेप्ट? अपोलो हॉस्पिटल ये एग्जेप्ट है। ट्रेनिंग ऑन सेग्रीगेशन, अब वो क्या कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि ये वाला कचरा ऐसा देना है, इस बैग में देना, ये वाला कचरा इस बैग में देना, ये वाला कचरा ट्रिपल बैग में, ऐसा कुछ होगा। ट्रेनिंग ऑन सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट टू हॉस्पिटल स्टाफ टू फर्दर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस, 1,25,000। क्या लगता है आपको, टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए?
एग्जाम्प्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लॉन्ड्री सर्विसेज, जो हॉस्पिटल बेड वगैरह होते हैं उसका लॉन्ड्री करा के देते हैं, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जाम्प्ट होना चाहिए? बड़ी कंपनी है, लॉन्ड्री भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए? नहीं, लॉन्ड्री मेरे हिसाब से लॉन्ड्री एक नॉर्मल सर्विस होती है, डॉक्टर्स के कपड़े धोना या बेड वगैरह धोना, वो तो कुछ उसमें बायोमेडिकल वेस्ट नहीं, नॉर्मल धोबी भी वो कर सकता है, तो ये इट शुड बी टैक्सेबल। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अरविंद फार्मा, फार्मा कंपनी, वो मेडिकल वगैरह, मेडिकल का कचरा, मेडिकल के भी होते हैं ना बॉक्सेस वगैरह, उसको, ये मेडिकल है, ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फार्मा कंपनी है, ये टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया है। कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन को नहीं लगा, एग्जाम रखा हुआ है। ट्रेनिंग एंड सेग्रीगेशन को नहीं लगा हुआ है। लॉन्ड्री सर्विसेज को टैक्सेबल किया हुआ है, और अरविंद फार्मा को भी टैक्सेबल किया, क्योंकि एग्जाम्पशन इज गिवन ओनली टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ओनली क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। तो टोटल 2,50,000 होता है, और उसके ऊपर जीएसटी 18% मार के 45,000 यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट, वैलिडेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, वैलिडेट करते हैं। हॉस्पिटल चार्जिंग रूम रेंट per day per room is 1,200 on room provided to inpatient. It is exempted supply of service. बोलो, ये रूम दिया जा रहा है, रूम, रूम का भाड़ा है, ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? ये क्या बोलते हैं, अभी तक उस पर ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ है, खाली पेशेंट को वहां पे रखा हुआ है, ये एग्जेम्प्ट है। अभी भी हमने बात की एक सर्कुलर में, एग्जेम्प्ट। द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, इट इज ट्रीटेड एज अ हेल्थ केयर सर्विस एंड रूम रेंट इन हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। ओके, कलाश्री, नहीं सॉरी, क्या है, कामाक्षी, क्या पता, कामाक्षी, कामाक्षी क्या पता कैसे रीड करेंगे, कामाक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग अ हॉस्पिटल बाय हायरिंग अ विजिटिंग डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ढंग से। मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट कंसेशनल रेट चार्ज बाय हॉस्पिटल इज 2,25,500 फ्रॉम अ पेशेंट एंड पेड टू विजिटिंग डॉक्टर इज 2 लाख। आप समझ रहे हो क्या कर रहा है हॉस्पिटल, पेशेंट से 2,25,500 दे रहा है। पहले तो बोलो पेशेंट इसके ऊपर जीएसटी भरेगा क्या? पेशेंट 2,25,500 पे जीएसटी भरेगा क्या? जल्दी बोलो। नहीं भरेगा, ये एग्जाम्प्ट है। अच्छा, डॉक्टर ये 2 लाख के ऊपर, डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, क्या ये 2 लाख के ऊपर भरेगा या एग्जाम्प्ट है? डॉक्टर, डॉक्टर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया ना वो तो ये भी एग्जाम्प्ट है। अब आपका मॉडल क्या बोलता है, ये बीच में जो 25,000 है ना, जो हॉस्पिटल ने लिए, उसके ऊपर हॉस्पिटल को भरना पड़ेगा। exempted supply if any and GST liable, तो क्या बोलता है, fee collected from patient 2,25,000 is exempted from GST. Hospital is liable to pay GST on such amount, such amount मतलब कौन सा amount, to 25,500 deducted from fees paid to the doctor and GST payable will be 4,590. आपका मॉडल बोल रहा है, और आपको याद रखना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा जो 25,500 जो मार्जिन लिया जा रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगता है, जबकि मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको अपना मॉडल फॉलो करना चाहिए, मुझे नहीं। तो इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं था। जब तक क्लैरिटी आएगा तब तक आपको जो मॉडल ने बोला वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। कैसे लगा आपको? चलो, हेल्थ केयर सर्विस यहाँ पे खत्म होता है। डू यू अंडरस्टैंड हेल्थ केयर सर्विस? और आपकी खास डिमांड पे मैंने आज हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया, आई होप यू अंडरस्टूड इट बेटर। ओके, तो पढ़ाई करते रहो। और नेक्स्ट एग्जामिशन जो बहुत बड़ा एग्जामिशन है गवर्नमेंट सर्विस का, और दैट कैन आई कैन नॉट स्टार्ट टुडे, क्योंकि वो खत्म भी नहीं हो पाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाता है। तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे तो चलेगा, और थोड़ा आवाज का डिस्टर्बेंस भी है, तो वी विल कैरी इट ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। चलो, टेक केयर, बाय बाय। कल का लेक्चर में कंफर्म करूंगा, मंडे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है, तो इफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल देन आई विल कंडक्ट द लेक्चर, एंड इफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट अवेलेबल देन वी कैन नॉट कंडक्ट द लेक्चर। तो वो आपको मैं कल का कल अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे। चलो, बाय बाय, टेक केयर।